Hello everyone. In this lecture, we will solve first internal test part C, data preprocessing for feedback analytics. क्वेश्चन नंबर 9, डेटा क्वालिटी इशू इन फीडबैक. इसके अंदर 5 चीजें होती है: एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी. फर्स्ट, एक्यूरेसी, द रियलिटी चेक. डज द डेटा करेक्टली रिफ्लेक्ट इन द रियल वर्ल्ड वैल्यू? इशू, नॉइज और एरर इन entry. Example, 950 instead of 95.0. Example, contradiction. Rating strongly agree but text say triple. Second, completeness. The missing check. Is all data present? Is all required data present? Issue. Null value example, missing course ID. Consistency. The standard check. Definition. Is the data format uniform? Issue. Different format: date, month, years versus month, date, year. Fourth, timeliness or believability. Definition. Was the data collect effectively at the right time? Content. Feedback collect 6 months later in useless. Student forget details. है ना? Trust worthless. Definition. Can we trust the source of the data? Content. Verifying user identity to prevent spam or fake review. क्वेश्चन नंबर 10, हैंडलिंग मिसिंग फीडबैक वैल्यू. है ना? इग्नोर द टपल डिलीशन. ठीक है. मेथड में डिलीट द एंटायर रो. ड्रॉबैक, वेरी wasteful, can lose 50% of data. Second, fill manually. Method, human look at record and fill it. Drawback, impossible for big data. Third, fill the global constant. Method, replace with unknown or -1. Drawback, algorithm might trend -1 as a real number. Handling missing value feedback part 2, mean median mode imputation. Fill with average rating of all students. Reduce variance. Fifth, class specific imputation recommended. Fill with average of the specific subgroup. Example, CS student only. Much more accurate. Question 6. Most portable values prediction. Method, use ML regression decision tree. No predict the value. इसका प्रोज होगा मोस्ट एक्यूरेट. कौन होगा? मोस्ट कॉम्प्लेक्स. Now question number 11, data smoothing bin means data. We have a data 13, 15, 16, 17, 19, 20, 20, 21 and 22. Stable partition into bins. थ्री बिन्स बनाएंगे, 1 2 3. एवरी बिन्स में हम तीन तीन डेटा की वैल्यू रखेंगे. कैलकुलेट करेंगे मीन, है ना? फिर रिप्लेस वैल्यूज विद द मीन. फिर इन वैल्यूज को इनके मीन से हम क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे. डिटेक्टिंग आउटलायर एंड अदर मेथड. आउटलायर को डिटेक्ट करेंगे, बॉक्स प्लॉट बनाएंगे IQR से और Z स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे और एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट फॉर अवे फ्रॉम द मेन क्लस्टर, एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव स्कैटर प्लॉट बनाएंगे. अदर डेटा स्मूथिंग मेथड्स, बीन मीडियंस, रिप्लेस वैल्यू विद द मीडियन, है ना? बेटर फॉर आउटलायर. बीन बाउंड्रीज, रिप्लेस विथ क्लोजेस्ट बाउंड्री, मिनिमम और मैक्सिमम. Regression, fit a line to the data. Question number 12, data integration. Data integration, schema integration, entry identification. इसके अंदर इशू आता है डिफरेंट नेम, स्टूडेंट आईडी वर्सेस रोल नंबर. सॉल्यूशन, मेटा डेटा एनालिसिस. हैंडल रिटर्डेंट डेटा, स्टूडेंट डुप्लीकेट और डेरिवेटेड एट्रीब्यूट. एग्जाम्पल, डेट ऑफ बर्थ एंड एज. Detection, chi-square, nominal or personal correlation numerical. Third, resolving conflict issue, different scale marks versus CGPA or outdated data. Solution, standardization and trust. Question number 13, normalize method A and B. A है मिनिमम मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन. इसका गोल होता है स्केल लिनियरली टू फिक्स रेंज 0 to 1. फॉर्मूला होता है v स्लेश इक्वल v माइनस मीन ऑफ ए मैक्सिमम ऑफ ए माइनस मिनिमम ऑफ ए.
सेंसिटिव टू आउटलायर या आउटलायर के लिए सेंसिटिव है. जेड स्क्वायर नॉर्मलाइजेशन स्केल टू मीन 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 1. फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू v माइनस वेरिएबल अपॉन a अपॉन वेरिएंस ऑफ a. प्रोज हैंडल आउटलायर्स बेटर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर सी एंड डी. जेड स्क्वायर यूजिंग एब्सोल्यूट डेविएशन. इसका गोल क्या होता है? रिवर्स वर्जन ऑफ एक्सट्रीम आउटलायर. इसके अंदर फॉर्मूला होता है वी स्लेस माइनस वी स्लेस इक्वल वी माइनस मीन अपॉन एम ए डी. और डिसीजन स्केलिंग. इसका गोल होता है मूव द डेसिमल पॉइंट, है ना. इसका फॉर्मूला होता है वी स्लेस इक्वल टू वी अपॉन 10 टू द पावर j. एग्जाम्पल माइनस 986 बिकम 0.986 डिवाइड बाई 100,000. Question number 14. Normalizing faculty. Workload. Data 200, 300, 400, 600, 1000. n equal to 5. मिनिमम 200 हो गया, मैक्सिमम 500 होगा. इसका मीन निकालेंगे तो 500 आएगा. स्टैंडर्ड डेविएशन 316.2 आएगा. एमएडी 240 आएगा. मीन और मेन की रेंज निकालेंगे 0 से 1 के बीच, तो 200 की 0.0 आ जाएगी, 300 की 0.125 आ जाएगी और 400 की 1 आ जाएगी. जेड स्कोर निकलेगा अपना माइनस 0.5. ये फॉर्मूला लगाएंगे जेड स्कोर का. ठीक है. तो 1000 बड़ी है माइनस 1.58 से. अब नॉर्मलाइजेशन वर्क फॉर्म अपन जेड स्क्वायर का यूज करेंगे. जेड स्क्वायर से 0.45 वैल्यू आएगी और डेसिमल से वैल्यू आएगी 0.02, 0.03 और 0.1. क्वेश्चन नंबर 15. नॉर्मलाइजिंग रेटिंग, है ना. 35 डेटा सेट स्टार्ट फ्रॉम. ये क्वेश्चन नंबर 2 का डेटा सेट है ना, जिसमें हम रेटिंग करें 35 को. तो स्टार्ट मिनिमम 13 हो जाएगा, मैक्सिमम 17 हो जाएगा, मीन 28.62 हो जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा 12.94. इसका मिनिमम निकलेगा हमारा 0.386. जेड इसको निकलेगा 35 माइनस मीन और डेसिमल स्केलिंग निकलेगी हमारी 0.35. बेस्ट मेथड मीन मैक्स प्रीवियस इंस्टीट्यूशन 0 to 1 फॉर फीडबैक स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 16. एज एंड प्रोडक्टिविटी नॉर्मलाइजेशन. इसके अंदर हम जेड स्कोर निकालेंगे. जेड स्कोर का एग्जांपल ही लेंगे. तो एज की निकलेगी माइनस 1.69 और प्रोडक्टिविटी की निकलेगी माइनस 2.15. एक रहेगा यंग और एक की रहेगी लो प्रोडक्टिविटी. स्टूडेंट ये हमने स्टूडेंट 1 की निकाली हुई है, स्टूडेंट 17 की निकालेगी, जिसकी एज है 16 और प्रोडक्टिविटी है 41.2. तो ये ओल्डर है लेकिन इसकी क्या प्रोडक्टिविटी है? हाई प्रोडक्टिविटी है. कोरिलेशन एज वर्सेस प्रोडक्टिविटी में, तो पर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट आर होता है ना. इसमें हम कोरिलेशन निकालेंगे तो ए कोमा बी ना निकालेंगे तो ये 0.76 के वहाँ आएगी. एज इंक्रीज सेल्फ असेस प्रोडक्टिविटी टेंड टू इंक्रीज. क्वेश्चन नंबर 17. पार्टीशनिंग बिन्स. हमको एक डेटा दिया है, उसको हमें पार्टीशन करना है बिन्स में. तो हम इसको 4 डेटा का एक सेट लेंगे और इसके 3 बिन्स बनाएंगे, बिन 1, बिन 2, बिन 3. ठीक है. और इसमें 4 वैल्यूज ले लेंगे डेटा की. इक्वल विथ 17 हो जाएगी. बिन 1 9 आइटम, बिन 2 1 आइटम. ठीक है. जो भी 5 से 6 की बिन रहेगी वो 9 रहेगी, इसमें 1 रहेगी और इसमें 3 रहेगी. बैड फॉर स्क्यू डेटा. ठीक है. ये बहुत बैड है. इसके अंदर हम क्लस्टरिंग करेंगे तो कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे? कैमिन करेक्टली आइडेंटिफाई आउटलायर्स. आउटलायर को आइडेंटिफाई कर देगी एज द सेपरेट क्लस्टर और उसके सेपरेट क्लस्टर बना दी. क्वेश्चन नंबर 18. एट्रीब्यूट सिलेक्शन टेक्निक्स. इसके अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं? फॉरवर्ड सिलेक्शन, बैकवर्ड एलिमिनेशन और हाइब्रिड मेथड. फॉरवर्ड सिलेक्शन क्या होता है? ये बिल्डर होता है, ये स्टार्ट एम्प्टी करता है, ऐड बेस्ट एट्रीब्यूट और ऐड नेक्स्ट बेस्ट पेयर. ठीक है. और जो बैकवर्ड होता है ये स्टार्ट फुल करता है, रिमूव वर्स्ट एट्रीब्यूट या वर्स्ट एट्रीब्यूट को रिमूव करता है और इसी को रिपीट करता रहता है. हाइब्रिड मेथड में क्या होती है? द बेस्ट फॉर बोथ. इन ईच राउंड ऐड बेस्ट न्यू and remove any attribute that become unless. So thank you. In this lecture we solve part C. In second lecture we will solve part D.